morning to all of you. So, bache, we are nearly at the end of the chapter now. So, with this, we'll be completing a very important and one of the lengthiest chapters in chemistry. Is to baad we'll do periodic table, which is a small chapter. So, and easy one. So, it will be like a kind of relief for all of you. So, आज बच्चे most probably इस chapter का last lecture है and we'll be doing some things. देखो जो important part सी इस chapter का that we have already covered, ठीक है ना? So आज कुछ बचे कुछ portions है, मतलब that we'll complete now. Among that, the first topic जो अब जापा ने करना है that is the shapes of orbitals. Otherwise इस टॉपिक दी एज इट इज कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सोनू कदे भी +1 एग्जाम च इदा नहीं आन लग्या डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स या कुछ भी द ओनली थिंग इज कि जदों अपन नेक्स्ट चैप्टर दे विच शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स करांगे देन वील यूज दिस टॉपिक ठीक है ना सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू सो वी शैल स्टार्ट ऑफ नाउ शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स बचे सो सब तो पहले वील डू एस ऑर्बिटल्स ठीक है ना सो अपने पास ਜਿਹੜੇ सबशेल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ S P D F ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्बिटल्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ S ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ऑर्बिटल ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏਗੀ ਸਫੇਰਿਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ L is equal to 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ and M is also equal to 0 ਜਿੱਦਾਂ orbit spherical ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ orbitals ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ S orbital ਹੈ ਉਹ ਵੀ spherical ਹੁੰਦਾ ਹੈ like for example this is your nucleus ਤਾਂ this will be 1s ਫਿਰ ਇੱਕ node ਹੋਏਗਾ 2s again a node 3s so this is 1s this is 2s 3s and so on ठीक है ना so ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਹਰਸ ਆਰਬਿਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2D ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਇਨ 3D ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਿਓ ਜੋ 3D ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਪਸ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ अगेन आई रिपीट कि जो ये शेप्स है इन्हां दी एज सच एनी इंपॉर्टेंस नहीं है द ओनली थिंग इज कि सारी इंपॉर्टेंस उदों आएगी जदों आपां नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर दे विच शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स करांगे केमिकल बॉन्डिंग दे टाइम ठीक है ना सो दिस इज एस ऑर्बिटल ठीक है ना ते अपने कोल एक सबशेल दे विच एक ही एस ऑर्बिटल हुंदा है सो एक ही ऑर्बिटल हुंदा है सो देखो 1s सबशेल दे विच एक 2s दे विच एक एंड सो ऑन ठीक है Now we shall move on to p orbitals. So hun dhyan nal kariyo. So dekho bache. So now we have p orbitals and apan nu pata bache p ਲਈ L is equal to 1, M is equal to -1, 0, +1 ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ this is your p subshell ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ orbitals ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -1 0 +1 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ p orbitals ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ p ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੇਮਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ this is called px this is called py and this is called pz ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ n ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਲਸ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ એનર્ਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੋ l ਐਜ਼ੀਮੂਥਾਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ l ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਸਬ ਸ਼ੈਲਸ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਕੀਤੇ ਸੀ m ठीक है ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उस तो अपन पता लगता सी ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस तब बच्चे देखो ओरिएंटेशन ए एक्स वाई जेड जो है इट इज ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एक्सिस
इट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एक्सिस। सो देखो px py pz, जो px है दैट विल बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स x एक्सिस। आप कहते हैं ना कि x एक्सिस किवें हुंदे ने, देखो अगर दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड जो z है बच्चे उसਨੂੰ ਆਪਾਂ 2D प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, है ना, क्योंकि ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, हाफ इधर ਨੂੰ ਤੇ हाफ बिहाइंड द प्लेन, ठीक है ना। तो उसਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਐਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। डन। सो दिस इज योर z एक्सिस। बेसिकली ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ x, ਇਸ ਨੂੰ z, ਇਸ ਨੂੰ y, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹਦਾ ਜਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਚ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਪੜਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਆਪਾਂ x ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ y। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ the only condition is कि they all three are perpendicular to each other। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि तीनों परपेंडिकुलर है, तीनों तुसी दिखा जिवें मर्जी सकते हो। नाउ हुन शेप्स, सो जो p ऑर्बिटल्स है याद रखना है कि दे आर डम्बेल इन शेप। इन्हां दी शेप की होती है बच्चे, डम्बेल, जिद्दां डम्बल्स हुंदे हैं, है ना। तो आप इन्हां नूं इदां शो करते हैं। सो दिस इज द शेप ऑफ p ऑर्बिटल, ठीक है। नाउ ਹੁਣ देखो, सो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ px ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ px ऑर्बिटल ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ योर px ऑर्बिटल। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ py ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ x, ਦਿਸ ਇਜ਼ y, ਤਾਂ py ऐदा। और जो आपने pz दिखाना है, फाइन, तो किसी भी एक्सिस को z मान लो, किसी को भी x या y कुछ भी लिख दो। सो लेट इट बी, दिस इज x एंड दिस इज z, मतलब बेसिकली ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर, है ना। सो दिस इज z, so px, so this orbital is px, this is py and this is pz। फाइन। अगर आपने तिन्ना नू इकट्ठे दिखाना है, ठीक है ना। सो बच्चे ये हो गया ना, अगर सो p ऑर्बिटल की शेप की है डम्बेल, नेम्स की ने px py pz, x y z की दिखांदा उन्हां दी ओरिएंटेशन इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन 3D स्पेस। सो दिस इज px, दिस इज py एंड दिस इज pz, ठीक है। अगर मैं z एक्सिस ए शो कर लूंगा, फिर आप इसको ऐ बना देंगे। अगर तिन्ना नू इकट्ठे बनाना है, सो अगर मैं तिन्ना नू इकट्ठे शो करना है तो लेट इट बी, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। आप z नू इदां बना लो। सो एक डॉटेड लाइन का मतलब की है बच्चे कि ये एक्चुअल इदा तो है नहीं, बट आप इदा शो कर रहे हैं, अदरवाइज तो आपको दिखेगी ही नहीं, क्योंकि हाफ इधर होएगी, हाफ बिहाइंड होएगी। सो दिस इज योर px, दिस इज योर py एंड दिस इज योर pz। फाइन। So px, py and pz. So they tell us about the orientation of electrons in different directions in 3D space. So this is about p orbitals बच्चे। अगर तुसी बुक्स या नोट्स दे विच देखोगे तो सानू मोस्टली s या p ही दिते हुंदे ने। आपां d भी करांगे, वैसे d दी यूज किते नहीं आएगी। जदों भी आपां नेक्स्ट चैप्टर दे विच शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स करांगे तो आपां नू s एंड p दी जरूरत ही पएगी, d दी आपां नू जरूरत नहीं पएगी। बट सिंस ਆਪਾਂ डी ऑर्बिटल्स ਨੂੰ स्टडी करते हैं तो आप एक बार डी ਦੀਆਂ शेप्स जरूर करांगे, ठीक है ना। हाँ जी बच्चे, सो टॉकिंग अबाउट द शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स नाउ। सो डी ਲਈ वी नो कि L is equal to 2 and M is equal to -2, -1, 0, +1, +2। So there are 5 orbitals। ਉਹ 5 orbitals बच्चे ਇਹਨਾਂ ਦੇ names now। सो जो 5 ऑर्बिटल्स होंगे ने उन्होंने नेम्स की होंगे ने dxy, dyz, dzx, dy
x2 y2 and dz2। सो ये 5 ऑर्बिटल्स है, dxy, dyz, dzx, dx2 y2, dz2। ठीक है ना, मतलब इसको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं बोलना, मतलब बोल तो जो मर्जी लो, बट एक होंगे x2 y2 है ना। कई बार आप मैथमेटिकल फॉर्म च इदा लिख दें कि मतलब बोल दें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, बट एक होंगे की है dx2 y2 dz2। तुसी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर जो मर्जी बोलो है ना, मतलब आपको क्वेश्चन ठीक हो तो मतलब होंगे, बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज dx2 y2 एंड dz2। ठीक है, नाउ इन्हां दी शेप की हुंदी है बच्चे, शेप ऑफ दीज ऑर्बिटल्स इज डबल डंबल। सो इस दे विच दो डंबल्स हुंदे ने इक्को ऑर्बिटल दे विच, डबल डंबल। नाउ सो पहला मैं dxy बनावांगा। सो बच्चे देखो, dxy जो ऑर्बिटल होएगा, अगर ये x एक्सिस है तो y एक्सिस है, ये ना x दे ऊपर ना y दे ऊपर, दोनों दे विच विचकार। सो देखो एक डंबल ऐदा, फाइन, एंड सेकंड डंबल ऐदा। सो दिस इज dxy ऑर्बिटल, ये इको ही ऑर्बिटल है, डबल डंबल, दो डंबल्स दा बनया हुआ है। सो x ते y दे विचकार, फाइन। नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट dyz। हुणे y ते z दे विचकार होएगा, तुसी इसनु y मान लो, इसनु z मान लो। सो फर्स्ट डंबल, सेकंड डंबल, सो dyz बचे। नेक्स्ट कम ऑन टू सो दिस इज dzx। सो तुसी इसनु x मान लो, इसनु z मान लो। सो जो x और z दे विचकार डंबल्स होंगे, दैट इज dzx ऑर्बिटल। ये गेटिंग अ पॉइंट? सो दीज आर डबल डंबल्स। जो dxy है वो x ते y दे विचकार ओरिएंटेड होएगा, zx yz y और z दे विचकार, एंड dzx z एंड x एक्सिस दे विचकार ओरिएंटेड होंगे। ठीक है ना। नाउ कमिंग ऑन टू dx2 y2। हले बच्चे यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट कि इन्हां दी शेप्स किवें है किवें नहीं, ये मॉलिक्यूल्स दी शेप्स नूं किवें इफेक्ट करदे हैं, कुछ नहीं। हले जंप ऑन ना करियो किसी भी चीज से, जिद्दां जिद्दां मैं करवाई जा रहे हैं उदा उदा करी चलो, उन्ना उन्ना करी चलो। आई गारंटी यू कि जो आप शेप्स करांगे दैट विल बी 100% क्लियर। जो चीज कही जा रहे हैं बच्चे बस ओहो चीज होई जावे, जो चीज लेक्चर च डिस्कस होई जा रही है अपन वो चीज चंगी तरह आनी चाहिए है। ठीक है ना, जो डोंट जस्ट जंप ऑन। ठीक है ना। सो देखो dx2 y2। सो x2 y2 की होएगा, जिमें देखो xy की सीगा बच्चे x और y एक्सिस दे विचकार, ए होंगे x और y एक्सिस दे ऊपर। सो देखो लेट इट बी, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ता एक डंबल x एक्सिस दे ऊपर और एक y एक्सिस दे ऊपर। Getting a point? So this is dx2 y2. Now dz2. So dz2 नु आपां किड्डां शो करांगे देखो। So let it be, this is your z axis and this is x या y, कुछ भी मान लो है ना, आपां नु z तो मतलब है। So z2 दा की होएगा, जिद्दां dx2 y2 x और y दे ऊपर है, इहदे दोनों डंबल z दे ऊपर होंगे, एक इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, एक प्लेन दे पिछे। सो देखो, सो एक डंबल ऐदा अगे वाल जो अपन दिखेगा, एक डंबल पिछे जो अपन नहीं दिखेगा। सो उसको अपन डॉटेड फॉर्म च ऐदा शो कर देंगे। सो अगर मैं तुहानू जैसे बना के दिखावा तो जिद्दां कि एक डंबल ऐदा, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, एक डंबल बचे ऐदा पिछले पासे। ठीक है ना। सो वो अपन डॉट्स दी फॉर्म शो करता, सो z एक्सिस दे ऊपर। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ f ऑर्बिटल्स अपन नहीं करांगे क्योंकि वो डिफ्यूज्ड शेप्स होंदी हैं। डिफ्यूज्ड मतलब
कि कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, दे आर डिफ्यूज्ड ऑल ओवर द एटम, ठीक है ना। सो आई रिपीट, s orbitals are spherical in shape, p orbitals are dumbbell in shape, d orbitals are double dumbbell in shape. p orbitals अपने पास 3 होंगे ने, px, py, pz, depending upon their orientation in different directions, and depending upon the orientation in different directions of d orbitals अपने को 5 होंगे हैं, dxy, yz, zx, dx2, y2 and dz2. Fine. So this is about the shapes of different orbitals. So after the shapes of the orbitals, जो next topic अपन एक छोटा सा topic cover करना है, that is energy level diagrams. Energy level diagrams. एनर्जी लेवल डायग्राम्स की है बच्चे, देखो मतलब आप सब शेल दियां एनर्जी लेवल्स दस रहे हैं, ठीक है ना। आप ऑफ बाउज रूल कर चुके हैं। ऑफ बाउज रूल च आपने की कीता सी कि द एनर्जी ऑफ अ सब शेल डिपेंड्स अपॉन द n प्लस एल वैल्यू। जिन्नी n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होएगी उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी ज्यादा होएगी, ठीक है ना। सो अगर मैं उसके अकॉर्डिंग एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनावा तो देखो, लेट इट बी, इधर मैं एनर्जी ले ली तो देखो सब तो घट एनर्जी सीगी, लीस्ट एनर्जी वाज ऑफ 1s, ठीक है। सेकंड शेल दे विच 2 सीगे अगे, ओदे विचों 2s दी एनर्जी 2p तो घट सी, ठीक है। फिर 3s, सॉरी थर्ड शेल दे विच अपने को 3 सीगे। सो सब तो पहले 3s, then 3p and then 3d, ठीक है। हुन बच्चे उस तो बाद आ गया सी फोर्थ शेल। हुन अगर तुहानूं याद होवे तो फोर्थ शेल दे विच जिहड़ा 4s सीगा ओदी एनर्जी 3d तो घट हुंदी है, याद है ना। 3p तो बाद आप 4s भरते होंगे हैं। सो अगर मैं फोर्थ शेल बनाऊंगा तो पहला मैंने 4s इत्थे इंसर्ट करना पड़ेगा, 4s फिर 4p फिर 4d एंड सो ऑन। सो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम। सो इजी है बच्चे, है ना। अच्छा एक चीज और जो तुहानूं नोट्स दिते हैं ओदे विच एक करेक्शन करने वाली है, ठीक है ना। ओदे विच जो टाइपिस्ट सर ने उन्होंने 3d तो ऊपर बनाया हुआ है 4s नु सिंपली, तो उसनु करेक्ट करके 4s नु नीचे ले आइयो, 3d नु ऊपर ले जाइयो, ठीक है ना। या तुसी इथों ही बना लोगे, ठीक है ना। सो 4p इत्थे बनेगा बच्चे, 4d ऊपर, 4f उस तो भी ऊपर, ठीक है। नाउ हुन मतलब ये तो एक सिंपल जी चीज है, मतलब सोनू स्पेशली इत्थे डिस्कस करने का मोटिव की है कि जो ये ऑफ बाउज रूल है बच्चे, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब जिन्ना कोल 2 या 2 तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप हाइड्रोजन की गल करिए या कोई भी इदां दी स्पीशीज जिन्ना कोल 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन किदे किदे कोल हुंदा है, एक तो हाइड्रोजन कोले, हीलियम कोल 2 हुंदे ने, तो एक बार निकाल दो की बन जाएगा हीलियम प्लस। देखो इदां दी स्पीशीज हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम कोल 3 हुंदे ने, 2 बार निकाल दो लिथियम प्लस, बेरिलियम कोल 4 हुंदे ने, 3 बार निकाल दो बेरिलियम प्लस। तो जिहड़े इदां दे सिस्टम्स है जिन्हां कोल 1 इलेक्ट्रॉन है वो ए वाला रूल ऑफ बाउज रूल फॉलो नहीं करते। उत्थे जिहड़ी एनर्जी है दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन द शेल, ना कि सब शेल। अपन डायग्राम किवें बनावांगे उत्थे इदां। सो energy, so this is 1s the energy, 2s and 2p the energy, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। बच्चे गल समझ आई कि नहीं। सिर्फ शेल दे ऊपर डिपेंड करोगी, जेड़ा शेल सब तो छोटा है ओदी एनर्जी सब तो घट, दूसरे दी सब उस तो ज्यादा, तीसरे दी उस तो ज्यादा, चौथे दी उस तो ज्यादा,
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਸ਼ੈਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸੇਮ, ਸਿਰਫ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏਗਾ। ਡਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਬਾਊਜ਼ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਮਲਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮਸ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਫ ਬਾਊਜ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ that doesn't depend upon the subshell, it depends only upon the shell to which the electron belongs। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਲ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ એનર્ਜੀ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬ ਸ਼ੈਲਸ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4 and similarly ਇੱਥੇ ਹੈ n is equal to 1, so 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2s ਦੀ ਘੱਟ 2p ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, n is equal to 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 3s ਦੀ ਘੱਟ 3p ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, 3d ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, n is equal to 4 4s ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ 4p 4d 4f and so on। getting a point? So this is about the energy level diagrams। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ, easy and frequently asked, just ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਚੇ। So easy and frequently asked in theory exams, ठीक है ना। So इसनों भी कर लेना है, नोट्स विच गिवन है दोनों एनर्जी लेवल डायग्राम्स ते। अगेन आई रिपीट कि आह वाली चीज उत्थे करेक्ट कर लेनी है, उत्थे 4s ऊपर बनाया हुआ है या तुसी इत्थों ही देख के बना लोगे। फाइन। एंड नाउ द नेक्स्ट एंड प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज कि आप सम अप करने हैं बच्चे डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। सो बच्चे ऑर्बिट्स की सी जो इंट्रोड्यूस हुई सी एट द टाइम ऑफ बोहर्स मॉडल, है ना, कि बोहर ने क्या कि द इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस नॉट इन एम्प्टी स्पेस बट इन डेफिनेट सर्कुलर पार्ट्स नोन एज ऑर्बिट्स। ठीक है। फिर अपन ने वेव थ्योरी तो बाद कीता कि ਸ਼ੈਲਸ ਜਾਂ ऑर्बिट्स ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਬ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्बिटल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, है ना। सो हुणे अपन डिफरेंसेस सम अप करने हैं बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। सो फर्स्ट डिफरेंस नोट करो बच्चे, देखो कि दिस इज अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल। सो ऑर्बिट टर्म की ने इंट्रोड्यूस की थी बोहर ने, की डिफाइन किया उसने कि अकॉर्डिंग टू बोहर, ठीक है बच्चे, मैं इतने जस्ट हिंट दी फॉर्म च लिखा हुआ, तुम या तो नोट्स चो पढ़ लेना टॉपिक या जो मैं बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाने हैं। सो अकॉर्डिंग टू बोहर an orbit is a space around the nucleus where the electrons revolve। ठीक है। Orbital, according to wave mechanical model, it is a space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum। So बच्चे definition ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ कि orbital ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, it is a space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਆਈ ਵਿਲ ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ p ਸਬਸ਼ੈਲ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੀਪ ਔਨ ਚੇਂਜਿੰਗ देयर प्लेसेस। अगर एक इलेक्ट्रॉन इस टाइम ਇੱਥੇ ਹੈ, थोड़ी देर बाद ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, थोड़ी देर बाद ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। दे कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन। तो हाउ कैन यू से कि वो px च है, py च है कि pz च है? दे कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। So you can only say the probability of finding the electron is maximum in the p subshell, कि वो ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, p subshell 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, बट ਉਹਦੇ ਚੋਂ px py pz 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? You can never ever guarantee। ठीक है ना। So according to wave mechanical model, the orbital is a space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum। ठीक है ना। सो याद करो बच्चे, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਰੇਡੀਅਸ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ, એનર્ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲੀ ਲਰਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 0.529 into n²/z ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮਸ। जबकि हाइजेनबर्ग्स रूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, रेडियस ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਦੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦਕਿ ਬੋਹਰ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਵਾਸ ਰੋਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਾਡਰਨ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੇਵ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਾਡਲ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ, ऑर्बिट्स ਦੇ ਨੇਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, KLMN, ਤੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 2 3 4। ऑर्बिटल्स ਦੇ ਨੇਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਬਸ਼ੈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਸ਼ੈਲ ਚ ਹੈ ਉਹ, अगर S सबशेल च है 1s 2s 3s, अगर P सबशेल दे ऑर्बिटल्स है 2p 2y 2p 3p 4p एंड सो ऑन। तो S P D F ते नंबरिंग किवें करदे हैं आप ऑर्बिटल्स दी, -l तो लेके 0 तो +l, ठीक है। ऑर्बिट्स आर सर्कुलर बच्चे, हुण जो बोहर्स ऑर्बिट्स सीगे दे वर 2D, आप उन्हां नूं 2D बनाने हैं, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो आपां नूं पेपर ते दिख रहा है ओही चीज, ठीक है ना। जबकि अज ही आपां ने कीती है कि जेडे ऑर्बिटल्स ने दे आर 3 डायमेंशनल। आपां नूं जो बोर्ड ते दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो उदा ही है, ठीक है ना। जिद्दां कि आपां ने कहा कि आपां एक्स ते वाई एक्सिस तां बना सकते हैं, जेड एक्सिस किवें बनाओगे, सो दे आर 3 डायमेंशनल। सो ऑर्बिट्स दे आर सर्कुलर इन शेप, जबकि अज ही आपां ने कीता है एस ऑर्बिटल्स की हुंदे आ बच्चे स्फेरिकल, P ऑर्बिटल्स की हुंदे ने डंबल, D ऑर्बिटल्स की हुंदे ने डबल डंबल, F ऑर्बिटल्स आर डिफ्यूज्ड ओवर द एटम। ऑर्बिट दे विच मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने का फार्मूला की सीगा 2n²। ऑर्बिटल दे विच फिक्स हुंदे ने, एक ऑर्बिटल च हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। बच्चे ये भी ना मतलब ध्यान च रखना है, मतलब वैसे ही मैं तुहानूं दस रहा जो आप MCQs करांगे सैपरेटली उदों तुहानूं वैसे ये चीज़ां लर्न हो जाएंगियां। मतलब दीज आर सम ट्रिकी क्वेश्चंस, कई बार उत्थे क्वेश्चन किया जाता है गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3p ऑर्बिटल, इन 4d ऑर्बिटल, इन 6f ऑर्बिटल, तो बच्चे आंसर 2 ही आऊगा हमेशा, ये गड़ेगा पॉइंट। अगर आपां सबशेल च पूछे फिर आपां P D F दे अकॉर्डिंग करांगे। लाइक अगर आपां आया क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2p, तो 6, 3p तां भी 6, 4p तां भी 6, क्योंकि p ऑर्बिटल 6 ही होंगे। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3d ऑर्बिटल, 10, 5d ऑर्बिटल 10, f ऑर्बिटल कोई भी चाहे 6f है, 7f है, 5f है, 4f है, तो 14। बट अगर ऑर्बिटल आता है बच्चे तो वो चाहे एस है, चाहे पी है, चाहे डी है, चाहे एफ है, वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, ठीक है ना। सो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्बिटल्स आर 2 डायमेंशनल, सॉरी ऑर्बिट्स और शेल्स आर 2 डायमेंशनल एंड ऑर्बिटल्स आर 3 डायमेंशनल। हाँ जी बच्चे, सो ऑर्बिट्स डू नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जेड़ा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है वो ऑर्बिट एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपने हुने कीता है। जबकि ऑर्बिटल्स शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स नु एक्सप्लेन करेंगे। एंड आप केमिकल बॉन्डिंग जिन्ने भी मॉलिक्यूल्स कॉमनली आप पढ़ते हैं, वाटर, एमोनिया, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, आप इन्हां सब दी शेप्स करांगे, ठीक है ना, तो बड़ी इजीली करांगे। सो विद द हेल्प ऑफ सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स, ताइयों आज आपने वो टॉपिक कीता है shapes of orbitals. So again I repeat, s orbitals are spherical, p are dumbbell and d are double dumbbell. Orbit जो है मतलब जो रूल ऑफ ऑर्बिट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट है, इट डज नॉट फॉलो हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपने कीता सीगा ना कि हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की कह रहे हैं कि वी कैनॉट फाइंड द रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद 100% एक्यूरेसी। जबकि बोहर्स दे ऑर्बिट्स दे विच आपां नूं 100% एक्यूरेसी दे फॉर्मूलाज दिते हुए हैं। सो दे आर ऑल रॉन्ग बेसिकली, ठीक है ना। वी कैन नेवर एवर फाइंड आउट द रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद 100% एक्यूरेसी नहीं। अगर तुसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नूं भी याद करो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर च आपां की कहंदे सी कि वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ n, आपां नूं की पता लग जांदा है, वी कैन फाइंड आउट अप्रॉक्सीमेट एनर्जी, वेलोसिटी एंड रेडियस। अप्रॉक्सीमेट वर्ड है बच्चे, 100% एक्यूरेसी दे नाल नहीं। ऑर्बिटल्स दे गो विद द हाइसेनबर्ग्स प्रिंसिपल, क्योंकि ऑर्बिटल दा कॉन्सेप्ट एक कहंदा ही नहीं कि असी 100% एक्यूरेट है। आपां डेफिनेशन ही की कीती है कि ऑर्बिटल इज अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। आप प्रोबेबिलिटी की गल कर रहे हैं कि इत्थे पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। आप ये तो कहते ही नहीं कि 100% एक्यूरेट है,
डन। सो प्रोबेबिलिटी की गल हो रही है। सो जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है वो हाइसेनबर्ग्स रूल ਨੂੰ फॉलो कर रहा है, जबकि ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट हाइसेनबर्ग्स रूल ਨੂੰ फॉलो नहीं करता बच्चे, ठीक है ना। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्बिट्स यानी कि शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। फाइन। सो बच्चे विद दिस वी एंड आवर चैप्टर, ठीक है। जो ਤੁਹਾਡਾ टेस्ट होएगा दैट विल बी फ्रॉम क्वांटम नंबर्स, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्पेसिफाई भी कर दिना। योर टेस्ट विल बी फ्रॉम पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 ਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਲ। ਫਾਈਨ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਟਿਲ पेज नंबर 32 ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਓ पेज नंबर 33 एंड 34 ਤੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਲੈਕਚਰਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਮੋਸਟ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पेज नंबर 35 ਤੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਗਰਸ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। अगर मैं हुण करवाऊंगा तो उसनू क्रैम करना पएगा, बट उदों जदों उहदे नाल रिलेटेड टॉपिक आएगा तो उहदे नाल आपां कवर कर लांगे, तो नाले तो उदों कवर हो जाएगा ते नाले ईजिली कवर हो जाएगा ते समझ भी आ जाएगा, ठीक है ना। सो सिर्फ पेज नंबर 35 ते एक हेडिंग है, देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो यह टॉपिक नू तुसीं मेरे कहण ते एक बार छड्ड दिओ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜੋ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਉਸਦੇ ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਅਗੇਨ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਕਿ ਜੰਪ ਔਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਲੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬਿਟਸ ਐਂਡ ਬਾਈਟਸ ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। जो पोर्शन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਿਉਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਟ ਆਫ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਆਰ ਚੈਪਟਰ। सो द टेस्ट बच्चे मैं इसका टुडे इट इज थर्सडे, सो फ्राइडे मैं तुहानू एक प्रैपरेटरी हॉलीडे दे दिना। आपां अगे पढ़न की बजाय तुसी इसनू प्रिपेयर कर लियो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लियो। तुहानू मैं एक असाइनमेंट दे दांगा बना के, उस असाइनमेंट नू प्रैक्टिस कर लियो, डाउट्स आपां इवनिंग च लै लांगे एंड सैटरडे विल बी द टेस्ट फ्रॉम क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना। तो सैटरडे नू टेस्ट होएगा ਤੁਹਾਡਾ क्वांटम नंबर्स ਦਾ। संडे नू ਆਪਾਂ पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर लांगे। ਇਹ ਵਾਲਾ संडे ਆਪਾਂ फ्री नहीं करांगे, ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ फ्राइडे ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਹੌਲੀਡੇ ਦੇਤੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ संडे ਨੂੰ पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर लांगे। लेट्स नॉट वेस्ट वन मोर डे, ठीक है। तो संडे ਨੂੰ पीरियोडिसिटी स्टार्ट कर लांगे एंड जो अगेन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ जो पीरियोडिसिटी ਦਾ चैप्टर है बच्चे दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन क्वांटम नंबर्स। इसी करके मैं तुहानू बार बार कह रहा कि क्वांटम नंबर्स नू चंगी तरह प्रिपेयर कर लियो। फाइन। सो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, ठीक है, कीप प्रिपेयरिंग, स्टे एट होम, स्टे फिट एंड फाइन। थैंक्स अ लॉट बच्चे।